glenohumeral ligament. Gleno for the glenoid cavity, humeral for the humerus. This is the glenoid cavity, this is the humerus. This glenohumeral ligament, it consists of three parts: superior, middle and inferior, thickened in three parts. वैसे तो सारी जगह पे होता है, तीन जगह पे ये thickened हो जाता है, ठीक है. There are three thickening in the anterior part of fibrous capsule to strengthen it. These are called the superior, middle and inferior glenohumeral ligaments. Its main, the glenohumeral ligament consists of three parts: superior, middle and inferior. ठीक है, बस इसके इतने नाम आने चाहिए. अब ये जो बोल रहा है कि दे आर विजिबल ओनली, डिफेक्ट एग्जिस्ट बिटवीन द सुपीरियर एंड मिडिल ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट विच एक्वायर इंपॉर्टेंस इन द एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ द. अगर बीसीक्यू में आता है कि शोल्डर जॉइंट डिसलोकेट एंटीरियरली, तो आंसर शुड बी दी ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट. इतना डिटेल में नहीं जाएंगे कि सुपीरियर और मिडिल, बट द आंसर शुड बी द इफ द डिसलोकेशन, अवल तो डिसलोकेशन एंटीरियरली नहीं होती, स्ट्रांग होता है. If occur, then which ligament is involved? Glenohumeral ligament. Now the coraco for the coracoid process. Coraco, this is the coracoid process, and from inferior surface of the coracoid process, and this ligament extending and passes into the greater tubercle of the humerus. This is called the coracohumeral ligament. The transverse humeral ligament जो मैंने पहले बताया, from the greater tubercle up to the lesser tubercle, and it encloses the which tendon? Tendon of the biceps brachii, which is covered by the synovial bursa, and this ligament convert this sulcus into a groove. ठीक है, अब ये वही, ये dotted appearance. This is the capsule of the joint, and this which is lax, inferiorly lax mean loose, and this blue line indicates the presence of the hyaline cartilage over the surfaces of the joint, and this is also the hyaline cartilage which covers the surface of the glenoid cavity. Now the structures present above the shoulder joint, this forms the arch and provide the support. ठीक है, ये वही नर्व्स है जो मैंने आपको दिखाया. नाउ वी आर डिस्कसिंग दी कोरेकोएक्रोमियल आर्च. कोरेकोएक्रोमियल, दिस इज द कोराकोइड प्रोसेस, दिस इज द एक्रोमियल प्रोसेस. इट फॉर्म्स एन आर्च एंड सपोर्ट दिस जॉइंट सुपीरियरली. यही वजह है कि सुपीरियरली ये ज़्यादा डिसलोकेट नहीं होता. ठीक है, दिस ओस्टियोलिगामेंटस, क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ बोन ही नहीं है ये, दीज आर आल्सो कंटेनिंग ऑफ द लिगामेंट्स, कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट्स, एंड दीज आर द कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट्स. बहुत सारे लिगामेंट्स भी हैं जो इसको आर्च को कंप्लीट होने में. सो द कोरेकोक्लेविकुलर आर्च इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स एंड द लिगामेंट्स. सो इट इज आल्सो कॉल्ड द ओशियो मीन बोनी लिगामेंटस स्ट्रक्चर, and it protect the shoulder joint superiorly. ठीक है, ऊपर से उसको प्रोटेक्ट करते हैं. फोर्सफुल मूवमेंट, the coracoacromial arch is so strong that a forceful superior thrust of the humerus will not fracture it. ठीक है, फ्रैक्चर नहीं होती. क्लेविकल और दूसरे फ्रैक्चर हो जाते हैं, उसका शेफ्ट हो जाता है, लेकिन ये the humeral shaft और the clavicle fracture first. ये हेड जो है वो प्रोटेक्शन में रहता है. ये वही डायग्राम है, इलाज करके दिखाइए. ठीक है, नाउ दीज आर द रिलेशन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ द व्यू ऑफ जॉइंट मूवमेंट्स. दिस इज द हेड ऑफ द ह्यूमरस. ठीक है, एंड दिस इज दिस ग्रीन लाइन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कैप्सुलर लिगामेंट, एंड दिस रेड लाइन indicates the presence of the synovial membrane. This is showing the sloping of the synovial membrane, mean bursa, subscapular bursa. This is the subscapular muscle, so it is called the subscapular bursa. And this is the acromial process, and the bursa present between the head of the humerus and the acromial process is called the subacromial bursa. Because of the location, their names are given as by their locations. Now this is the posterior relation.
Infraspinatus muscle is the infraspinatus muscle. The bursa below this muscle is called the infraspinatus bursa. Now the posterior relation of this joint is consisting of infraspinatus. These are the posterior fibers of the deltoid, and this is the teres minor. Anterior relation include the subscapularis, pectoralis major, and the deltoid के anterior fibers. The superior relation consists of supraspinatus and superior fibers of the deltoid. You can see this one. And the inferior relation consists of these two artery and nerve, so posterior circumflex femoral artery and the axillary nerve and muscle. These two muscles, this is called the teres major and the long head of the biceps. These are the relations. तो जब हम मूवमेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भाई जो फ्लेक्शन एंड फ्लेक्शन जब आप करते हो तो बॉडी की तरफ जा रहे हो, तो फ्लेक्शन तो इसका मतलब है एडक्शन. तो ये मूवमेंट्स जो होंगी मसल एडक्शन और फ्लेक्शन में इन्वॉल्व होंगी, सॉरी ये वाली एंटीरियरली, और पोस्टीरियरली एक्सटेंशन एंड एबडक्शन में ये वाली मसल्स इन्वॉल्व होंगी. ठीक है, और ये होंगी हमारे पास एबडक्शन में जो हाथ ऊपर करते हैं, एडक्शन में फिर ये वाली होगी. अभी मैं आपको अलग से बताती हूँ. तो ये रिलेशन इस लिहाज से ज़रूर याद करना एंटीरियर पोस्टीरियर के हैं. तो ये रिलेशन मैंने लिखे हैं, सुपीरियरली कौन सी मसल्स हैं, इंफीरियरली कौन सी, एंटीरियरली कौन सी, पोस्टीरियरली कौन सी, एंड विद इन द जॉइंट कौन सा टेंडन है किस मसल का. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स में से लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स, यहाँ पे आप देखो, दिस इज द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप एंड इट इज़ अटैच एट दी ह्यूमरस के हेड पे एक जगह होती है, उससे अटैच होकर फिर ये बाइसेपिटल ग्रूव में से निकलता हुआ आता है. ठीक है, ये वाला लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप्स. यहाँ पे ह्यूमरस के हेड में एक ट्यूबरकल टाइप होता है, वहाँ से अटैच होता है और यहाँ पे इधर आके. ठीक है, तो ये विद इन दी जॉइंट में हो गया. नाउ दी बर्सा सैक लाइक कैविटीज़ जो हैं, जो हमने कहा कि मैंने आपको बर्सास के नाम, बर्सा है क्या, सेवरल बर्सा सैक लाइक कैविटीज़ containing capillary film of the synovial fluid. ये बहुत अहम है. Bursas are consisting of synovial fluid which is secreted by the synovial membrane. Bursa are located where tendons rub against, जहाँ पे रब होने का अंदेशा होता है, तो वहाँ नेचर ने प्रोवाइड किया है ताकि यहाँ पे synovial membrane स्लिपरी सर्फेस प्रोवाइड करे, ताकि बोन या टेंडन या टू बोन्स के बीच में या टू मसल और टेंडन और बोन्स के बीच में कोई फ्रिक्शन ना आए. ठीक है. द बर्सा अराउंड द ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट आर स्पेशल क्लिनिकल इंपॉर्टेंस बिकॉज दे कम्युनिकेट द जॉइंट कैविटी. जो मैंने कम्युनिकेशन बताया, सब स्केपुलर बताया, सुप्रास्पाइनेटस, सब इंफ्रास्पाइनेटस बताया, सब एक्रोमियल बर्सा बताया. ठीक है. सब टेंडिनस बर्सा ऑफ द सब स्केपुलरिस. सब स्केपुलरिस जो मैंने आपको एंटीरियरली दिखाया, बिटवीन द टेंडन ऑफ, नाम से ही पता चल रहा है, सब स्केपुलरिस एंड द नेक ऑफ द स्केपुला. दिस इज द, ये बर्सा बिलो वाला, ये नेक ऑफ द स्केपुला है, एंड यहाँ पे हम बताएंगे कि ये क्या है. दिस मसल इज कॉल्ड द सब स्केपुलरिस. इन दोनों के बीच में लोकेशन आनी चाहिए. ठीक है. एंड दिस इज द सब एक्रोमियल बर्सा. ये दिस एक्रोमियल प्रोसेस है, और यहाँ पे हमारे पास ग्रेटर ट्यूबरकल है, तो इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन दिस टू, एंड दिस इज द bursa covering the biceps, long head of the biceps. Subacromial bursa, this one. ठीक है. It is also known as the subdeltoid. Subacromial bursa is also known as the subdeltoid bursa. Between the acromion process, this is above acromion process होगा, and the acromioclavicular ligament. This is the acromioclavicular ligament. This one. And deltoid superiorly, the supraspinatus tendon and the joint capsule of the glenohumeral ligament inferiorly. वो तो चलो इतना डिटेल में नहीं पढ़ो. ठीक है. तो ये जो बर्सा है, इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट्स ऑफ द, दिस फैसिलिटेट्स द मूवमेंट्स ऑफ द subscapular muscle. This is facilitate the movements of the deltoid muscles and supraspinatus muscle. नाउ दी नर्व सप्लाई एंड ब्लड सप्लाई. नर्व सप्लाई अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ पे मैंने आपको जो रिलेशन बताया
कौन सी नर्व थी, एक्सिलरी नर्व तो थी ही थी, ये रही दिस वन एक्सिलरी नर्व। ठीक है, ऊपर अगर हम यहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई में, इसका मतलब है